परम पूज्य सोना रिम्पोचे की दूरदर्शी सोच और प्रयासों से परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक टेलीविजन कार्यक्रम जो समर्पित है भगवान बुद्ध के दर्शन, ज्ञान और बौद्ध परंपराओं को। कार्यक्रम में दुनिया के तमाम बड़े बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध ज्योतिष शास्त्री रोज आप तक पहुंचा रहे हैं अमूल्य जानकारियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं। कार्यक्रम शेराप सेंगपो आपको हर रोज भगवान बुद्ध और उनके दर्शन से रूबरू करा रहा है। इस कार्यक्रम में हर रोज आप भारत के अलग अलग हिस्सों में रह रहे बौद्ध धर्मावलंबियों की जिंदगी और भगवान बुद्ध में उनकी अपार आस्था से रूबरू होते हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान परम पूजनीय प्रोफेसर सैमडोंग रिम्पोचे पधारे हैं थुप चौंग गैसल लिंग में। परम पूजनीय का यहाँ पर जोरदार स्वागत किया जाता है। लाइन में खड़े इन बच्चों के प्यार को देखकर परम पूजनीय सैमडोंग रिम्पोचे ने सभी को स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया। परम पूजनीय के दर्शन को लेकर लोग कितना उत्साहित है, इसका बयां ये तस्वीरें खुद ही कर रही हैं। परम पूजनीय भी किसी को निराश नहीं करते। लोगों से मिलते हुए परम पूजनीय प्रोफेसर सैमडोंग रिम्पोचे के चरण पड़ते हैं मॉनेस्ट्री के मंदिर में। परंपरागत बौद्ध तरीके से परम पूजनीय मूर्तियों को दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद परम पूजनीय मंदिर में स्थापित बौद्ध धर्मगुरुओं की मूर्तियों का भी दर्शन और पूजा करते हैं। इस दौरान लामा लोग मठ से जुड़ी हर चीज की जानकारी से भी परम पूजनीयों को अवगत कराते हैं। अब पावन घड़ी आती है आशीर्वाद लेने की। स्थानीय लोगों के साथ साथ बौद्ध भिक्षु भी परम पूजनीय का आशीर्वाद लेते हैं। लोगों में परम पूजनीय से आशीर्वाद लेने की कितनी जबरदस्त इच्छा है, इसका पता तो इस तस्वीर को ही देखकर लगा सकते हैं। कार्यक्रम के अगले एपिसोड में भी हम आपको दिखाएंगे परम पूजनीय प्रोफेसर सैमडोंग रिम्पोचे की अरुणाचल यात्रा को। कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां। ट्रस्ट टेले नमस्ते। 22nd January 2011 Saturday and 18th lunar day of 11th month. The elemental combination is earth water, which is a good combination and brings youthfulness and happiness. Good day to enjoyment, partying and wearing new dresses. However, elementary combination will be changed from 4:36 p.m. and it will be earth fire, a bad combination and it brings burning and lead to suffering. But activities related to defeating enemies or adversaries will be more effective. BT start moving from 6:36 a.m. till 11:24 p.m. from south east to northwest direction, so avoid undergoing Parsec therapies like bloodletting and moxibustion. And since it is Thurginamgu, any kind of funeral ceremonies need to be avoided.
And Sada Yangon is also appeared on this day, so refrain from doing constructions, marriages, celebration, funeral, and borrowing or refunding debts. Pumdong or empty was is at east direction, so important activities should not be done while facing eastward. 23rd January 2011, Sunday, 19th lunar day of the 11th month. The elementary combination is fire and fire, which is a good combination, and such combination gives prosperity, encourages the gaining of food and clothing, good for trade, planting seeds, and praying for wealth, God, and do involve in meritorious deeds. It's especially a good day for people who are born under dragon years, since it is secure, avoid undergoing any toxic or surgical works, and it is also not a good day for observing prayers for the deceased one. In addition, the Lord of Earth or Sada Simbung moves from south to north direction in the evening, thus undertaking, journeying, or starting or important work from south to north direction during evening is not a good. Pumdong or empty was is at east direction, so important works should not be done while facing eastward. 24th January 2011, Monday and 20th lunar day of 11th month of Iron Tiger year. The elemental combination is fire-water, which is a bad combination and brings death, unfavorable for peaceful undertaking, but it is negative. It is more favorable for negative activities such as killings, concocting poisons. Cursing will be more forceful. However, the elemental combination will be changed from 1 p.m. and it will be water wind, which is also an inauspicious combination and brings disharmony and separates from friends and relatives. Therefore, don't believe in rumors and gossips and cope well with your friends and relatives to prevent separation from them. And it is Chi Namgo, so not an auspicious for almost all the important works. This day is especially favorable for people of dog years. And Pumdong or empty was is at east direction, so important activity should not be done while facing east. Thanks for watching and see you tomorrow at the same channel at same time. बुद्धं शरणं गच्छामि। क्या है भगवान बुद्ध का दर्शन, बौद्ध धर्म का गूढ़ ज्ञान, कैसे मिले दुख से मुक्ति, कैसे पाएं बुद्धत्व, क्या है धम्मम, क्या है संघम। ये कार्यक्रम आपको हर रोज दे रहा है ऐसे तमाम सवालों के जवाब। आज बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान प्रोफेसर सैमडोंग रिम्पोचे से जानिए भगवान बुद्ध का दर्शन और बौद्ध धर्म का सही ज्ञान। बौद्ध धर्म की प्रवेश का एकमात्र मार्ग श्रुति संचय करना है। श्रुति संचय करने का अर्थ है पढ़ना, लिखना, अध्ययन करना, गुरुजनों से सुना, और वह जैसा भगवान ने कहा है ऐसा करके विश्वास नहीं करना। तथागत बुद्ध ने बुद्ध के प्रति श्रद्धा और बुद्ध के प्रति गौरव के कारण मेरे कथन को मत मानो। मेरे कथन को जैसा स्वर्ण ताप कर छेद कर रगड़ करके स्वर्ण की जांच करता है, उसी प्रकार से मेरे वचनों को, मेरे उपदेशों को अपने तार्किक दृष्टि से, अपने न्याय से और अपने
कारण बुद्धि से जांचो और जांच करके जो अपने से गवेषणाबाद जो पाएंगे उस पर विश्वास करो। बुद्ध के कथन पर विश्वास मत करो। यह अनेक दार्शनिक परंपरा से कुछ भिन्नता रखते हैं। भगवान बुद्ध कभी ये नहीं कहते हैं कि मैं तुम्हारा शरण हूँ या मेरे शरण आ जाओ तो सब शरण हो जाएंगे, रक्षित हो जाएंगे। भगवान बुद्ध बराबर ये कहते हैं कि तुम स्वयं अपने शरण हो, तुम स्वयं अपने नाथ हो। बुद्ध धर्म संघ त्रिशरण के रूप में हम ग्रहण करते हैं तो वो ऐसा नहीं करते हैं कि वो कोई बाह्य कोई विषय है उसके प्रति हम शरण जाते हैं। बुद्ध को शास्त्रा के रूप में देखते हैं। बुद्ध माने ऐतिहासिक बुद्ध को शास्त्रा के रूप में देखते हैं और उसके संघ को सह साधक के रूप में देखते हैं। मात्र धर्म को शरण के रूप में, सही शरण के रूप में देखते हैं। धर्म चित्त में उत्पत्ति होंगी तभी आप राग और द्वेष से बच पाएंगे। भगवान बुद्ध वेद की उपमा से कहा गया है, वेद की तरह है। वो रोग की निदान करेंगे, रोग के कारण का निदान करेंगे और उस रोग कारण को निवारण करने के लिए उपाय का उपदेश देंगे। उससे रोग का समाप्त नहीं होगा। रोग समाप्त होगा उस निवारण के उपाय जो भी बताए गए हैं वो स्वयं अपने सेवन करेंगे, आचरण करेंगे, दवाई खाएंगे तब रोग ठीक होंगे। और बहुत गंभीर रूप से बीमार हैं, रोगग्रस्त हैं तो उनके लिए परिचारक भी चाहिए, साथ देने वाले चाहिए, समय से दवाई देने वाले, समय से उठाने बैठाने वाले, जगाने वाले, सुलाने वाले। तो उस तरह से संघ को शरण रूप में लिया गया है। और बुद्ध स्वयं बुद्धत्व प्राप्त करते समय जो प्राप्तीय बुद्ध हैं वह भी सही शरण है। और भविष्य में जिस प्रकार के धर्म अपने चित्त में उत्पन्न होने वाले हैं, उत्पन्न होने की संभावना रखते हैं, वह सही शरण है। और इसलिए बुद्ध धर्म जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे, अनुशीलन नहीं करेंगे, शोध नहीं करेंगे तो केवल मंदिर में जाने से, धूप और दीप जलाने से बुद्ध धर्म का सेवा नहीं होता है। वह एक श्रेष्ठ आचार्य हैं लेकिन उससे धार्मिक चित्त अपने में उत्पन्न नहीं होगा। जब तक धार्मिक चित्त उत्पन्न नहीं होगा तब तक आप धर्म में प्रवेश नहीं करेंगे। धार्मिक चित्त उत्पत्ति होगा तो आप स्व को पर से श्रेष्ठ नहीं देखेंगे, स्व पर समता देखेंगे। स्व पर समता देखेंगे तो राग द्वेष नहीं होंगे, मैत्री और करुणा होंगे। उस दिशा में अग्रसर होने के लिए हम सब प्रयासरत होना चाहिए। आप लोग सौभाग्यशाली हैं, अच्छे प्रदेश की नागरिक हैं, अच्छा धार्मिक गुरुजन विद्वान उपलब्ध हैं, अच्छा संस्थाएं हैं, अच्छा ग्रंथालय हैं। तो इसलिए अगर संपूर्ण मनुष्य बन करके चारों पुरुषार्थ को सिद्ध करना चाहते हो तो धर्म की अध्ययन अवश्य करना चाहिए। वह अध्ययन भी मात्र श्रद्धा और विश्वास के माध्यम से नहीं, तार्किक बुद्धि से करके यथार्थ को अपने आप जांचने की, पड़ताल करने की
योग्य बनना चाहिए और उससे यथार्थ को देखना चाहिए। इसमें आप लोग प्रयासरत रहें तो अपने कल्याण होगा, कुल का कल्याण होगा और संपूर्ण जगत का कल्याण होगा, सभी का कल्याण हो। इस भावना के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। मैं इसको 2 शब्द में तिब्बती कह दूंगा। करुणा और मैत्री का मूल अंतर इतना ही है। करुणा जगत के दुख को देखते हैं, जगत के दुख का अनुभव करते हैं और जगत की दुख अपने दुख रूप में अनुभव करते हैं। ऐसा चित्तवृत्ति को करुणा कहते हैं। और दुख निवारण की इच्छा के साथ अन्य की पर की दुख का अनुभव करना करुणा की स्वरूप है। कोई दुखी अपने दुख से त्रस्त देखते हैं तो उसका उपेक्षा न करके उस दुखी व्यक्ति का दुख कैसा हटाया जाए, उसको दुख हटना चाहिए। दुख हटने की प्रबल इच्छा उत्पन्न होता है तो उसको करुणा कहते हैं। उसकी अवलंबन में 2, 3, 4 या अल्प संख्या में पुराने लोग होते हैं और अल्पसंख्यक के पुराने अथवा अपने से जितना देख पहचान पाते हैं उतने लोगों की दुख निवृत्त करने की, दुख हटाने की इच्छा होते हैं, उसको करुणा कहते हैं। और अनेक लोगों का, अपरिमेय लोगों का, अपरिमेय सत्वों का दुख हटाने की संकल्प है या इच्छा है, उसको अपरिमेय करुणा कहते हैं। और उस करुणा की अवलंबन में संपूर्ण सत्व आ जाते हैं। समस्त सत्व, जितना भी सत्व हो सकते हैं, उन सब के दुख से दुखी होकर के उनके दुख निवारण करने की संकल्प लेते हैं, उसको महाकरुणा कहते हैं।